So, hi everyone, what's up? Very warm welcome. And today's session is a very special session. एक चीज़ जिससे कि हम सभी गुजरते हैं और उस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे देश के एक बहुत ही जानी मानी हस्ती when it comes to life coaching or motivational speaking, telling people how to live life with possibilities. Everyone, please help me welcome the world renowned, very popular life coach, motivational speaker, and co founder of Possiblers, Suresh Mohan Senwal ji. हाय सुरेश जी, हाउ आर यू? आपका फ्रेम मेरे फ्रेम से बेहतर है और आप मुझसे ज्यादा गुड लुकिंग लग रहे हैं. Oh, thank you, Anupama ji. It's a nice compliment to have from a person like you. Thank you. तो सुरेश जी, बिफोर आई आस्क एनी क्वेश्चन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो भी कभी स्ट्रेस एंजाइटी उनको भी होती है या नहीं होती है? सच जवाब ये है कि देखिए, स्ट्रेस इज वेरी नेचुरल. स्ट्रेस सिर्फ उन लोगों को नहीं होता जो बेवकूफ होते हैं. अच्छा. हाँ, उनके कारण दूसरों को होता है. तो एनी सेंसिबल मैन, जिस मैन और अ गर्ल और अ वुमन जिसका दिमाग काम करता है, वी आर बाउंड फील स्ट्रेस्ड. So motivation speakers, because they are not dumb people, they are no exception. True. So, Suresh ji, you have a certain style of saying what you want to say. आप हमेशा लॉजिक और ह्यूमर को साथ लेके चलते हैं. नॉर्मली जब हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हैं, दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोज, एक फोर्सफुल लैंग्वेज होता है उनका. आपका स्टाइल बहुत है. तो इज इट यू, इज इट नेचुरल? आपको कभी लगा कि द ट्रेंड में ऑन टोज चल रहा है तो मैं अपना स्टाइल चेंज करूं, बिकॉज पीपल लाइक यू फॉर दिस स्टाइल. सो ये स्टाइल के बारे में कुछ बताइए. अनुपमा, आई बिलीव कि आप जितना ज्यादा एनिमेटेड हैं, इसका मतलब उतना ज्यादा प्रिटेंशन है. बिकॉज एनीथिंग विच यू फील, you don't need to shout about it. It comes naturally. So, and trust me, the one very reason why majority of the people are under anxiety and under depression, because they are living with a lot of pretension. देखिए, बहुत से लोग अपने बारे में बहुत सी चीजें प्रिटेंड कर रहे हैं जो वो है नहीं. और समस्या पता है क्या है अनुपमा? दूसरों को शायद फिर भी यकीन हो जाए उसके बारे में, लेकिन आपको अंदर से पता होता है कि आप वो नहीं है. करेक्ट. ओके, तो दिस रियली किल्स अ पर्सन. सो आई डोंट वांट टू डू दैट. नो प्रिटेंशंस. मैं जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ सुरेश जी, इज लाइक हमको स्ट्रेस एंजाइटी होती ही क्यों है? लाइक व्हाई वी हैव टू डील विद इट एनीवेज? As I said earlier, Anupama, क्योंकि वी आर इंटेलिजेंट पीपल, वी आर नॉट डम पीपल, वो मैं याद रखूंगी. Yes. So the more intelligent you are, the more chances you are bound to feel stress. Like, for example, as a responsible person in the current environment, you are supposed to feel stressed for people who are distressed right now. Okay, you're bound to feel uncomfortable. What is stress, by the way? Stress is our body's response to an external situation. So when the situation is not convenient, when the situation is actually not comfortable, as a sensible person, you are bound to feel some uncomfort in you. Okay, there's no denial of it. So natural, stress is okay. My generally my advice to people is stress is okay, because stress is generally temporary. Problem is anxiety. Anxiety is a chronic issue. सुरेश जी, लॉट ऑफ पीपल थिंक कि स्ट्रेस से एंजाइटी होता है, तो मतलब इट्स नेचुरल. अगर मैं स्ट्रेस में हूँ तो एंजाइटी तो होगा ही. सो इट्स लाइक बाय प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस. एंजाइटी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस. Yes, it is. Yes, it is. So, but it is a byproduct of stress. But anxiety becomes absolutely different thing to handle. Like, for example, stress can be a physical stress. If I ask you to lift 80 kgs right now, it's a physical stress on your body. Okay, it's a physical stress. Suppose somebody suddenly attacks someone, it's a real stressful situation. So the body is bound to prepare itself for some impact or some scuffle. लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ समस्या क्या है कि वो एंजाइटी में है.
एंग्जाइटी का मतलब क्या है? वरी, हम्म। फियर अबाउट फ्यूचर, जो हम्म। आज की परिस्थिति में बड़ा नेचुरल है। इससे पहले कि मैं आपको बाकी चीजें बताऊं, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं जो आजकल लोग शायद एड्रेस नहीं कर रहे। देखिए, दो तरह के सिचुएशन से आप और मैं डील कर रहे हैं। एक तो है रियल, एक्चुअल, हम्म। और जो हम्म। ज्यादातर जो परेशान है लोग, वो है वर्चुअल। आई मेरे फेसबुक टोटली पे, अग्री सुरेश। या या। मैंने फेसबुक पोस्ट किया है, 3 घंटे हो गए और उस पे अभी 30 लाइक्स आए हैं। इज इट अ रियल इशू? या जस्ट अ वर्चुअल इशू। एब्सोल्युटली। People are checking their WhatsApp, their Facebook again and again to see. अब आपके बार बार देखने से तो वो लाइक बढ़ने वाले हैं नहीं, right? So is it a real life and हम्म। death situation? Is हम्म। it that important? I think that is also one reason that people are under unnecessary stress also nowadays. That I call a virtual stress, which is not reality, and that needs to be handled, by the way, because it's killing more सुरेश जी, people than. what do you have to say about the fact कि मान लीजिए किसी और देश में कोई दिक्कत है, जस्ट बिकॉज हम न्यूज पे सुनते हैं तो हम उसे पर्सनल ले लेते हैं। मतलब हम उन बातों के लिए सैड हैं जो हमारे साथ हो नहीं रही है, हम उन बातों के लिए स्ट्रेस्ड हैं जो हमारे साथ हो नहीं रही है। वी थिंक कि क्या पता कल को हो जाए, क्या पता परसों हो जाए। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? ये जो हम किसी और की प्रॉब्लम सुन सुन के पढ़ पढ़ के देख देख के ये हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि हमारी लाइफ में भी हो सकता है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? See, as a sensible person, you are supposed to think that way. There is nothing wrong with it. The problem is when you do not do सुरेश जी, anything आज about आपने it. बेस्ट काम पता है क्या किया है? ऑल दीज यंगस्टर्स वो अपनी मम्मी को जाके बोलने वाले हम इसलिए स्ट्रेस हैं क्योंकि हम इंटेलिजेंट हैं, हमको सुरेश जी ने बताया है। सो वी आर इंटेलिजेंट Yes, और पीपल, वी आप आर बाउंड टू फील स्ट्रेस। no, I'm sure all the people that who are watching us right now, they are responsible person in their family, and you will find that the more responsible you are, the more stressed you feel. And there are some family members who are not stressed at all. Okay, so it's okay to be under stress, but it is not okay not to learn how to manage it. Okay, अगर मुझे अपनी जिम्मेदारियां ढंग से एब्सोल्युटली। निभानी है तो मुझे खुद ठीक रहना बहुत जरूरी है. So this can be learned, which is easy. Let me give you a quick formula of stress. What is stress? Uncertainty multiplied with importance. The more uncertainty you have, okay, the more uncertainty you feel, the more stressed you feel, the more anxieties you will have, the more depressed you become. Or when you give a lot of importance to a particular event or a person or an activity, that increases your stress. तो मैंने अपने बॉस को ये बताया था, पता, एक्चुअली मेरे बॉस ने जब ये शेयर किया, तो मेरे बॉस ने जब ये फॉर्मूला बताया कि भाई अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड विद इंपॉर्टेंस इज इक्वल टू स्ट्रेस, तो मैंने कहा सर फिर तो मेरे का स्ट्रेस दूर होने का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है. उन्होंने कहा क्या फॉर्मूला है? मैं कहा जी मैं आज के बाद किसी काम को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा. द इंपॉर्टेंस विल बी जीरो, तो स्ट्रेस विल बी जीरो. सो माय बॉस सेड कि इंपॉर्टेंस ऑफ द टास्क यू कैन नॉट डिसाइड, द कंपनी डिसाइड्स. So you actually आप can only work on आप uncertainty बॉस part. की बात कर रहे हैं और हमारे पास एक क्वेश्चन है, रीना सिंह पूछना चाहती हैं, हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस when we feel insignificant with someone and that senior or leader does not pay attention to the work and contribution. मतलब ये तो सुरेश जी हर एम्प्लॉयड बंदे की दिक्कत है कि वो इनसिग्निफिकेंट फील करता है, खास तौर पे जब वो अपने बॉस से डील कर रहा होता है तो। I know Reena Singh, so therefore I will give an answer which she will understand. See, please understand, दो अलग अलग चीज है. एक होता है स्वभाव और एक होता है आदत. अनफॉर्चुनेटली लोग इन दोनों चीजों को सेम समझते हैं. देखिए, बट स्वभाव चेंज करना बहुत मुश्किल है, आदत चेंज हो सकती है. अच्छा। ओके, कई लोगों का स्वभाव से ही अपने बारे में इनसिक्योर फील करते हैं. मतलब आप उनको कोई पोजीशन दे दो, कोई डेजिग्नेशन दे दो, पर उनको हमेशा लगता है कि नहीं, मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही. दैट नीड्स टू बी हैंडल्ड डिफरेंटली. Okay, लो but सेल्फ otherwise एस्टीम। the simple solution is you need to learn the language, and then you need to communicate with them in their language. You need to understand the need of the other person.
हम्म Okay, and then हम्म accordingly you need to behave, the people will understand. हम्म Okay. सो Hmm. आपके एक फैन है नलिन स्वामी, उनका एक क्वेश्चन है, सुरेश जी प्लीज टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ बिग थिंकिंग एज यू टोल्ड इन वन ऑफ योर सेमिनार्स, ऑटो पे लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, या ये वाला। As I was telling, as I was saying कि ये स्वभाव होता है कई लोगों का चिंता करना बार बार। अच्छा, चिंता करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ चिंता करते हैं, उसके बारे में कुछ करते नहीं है। और कई लोगों को लगता है कि चिंता करना काम है। चिंता करना कोई काम नहीं है। मैं जी जनरली अपने जितने भी लोग काउंसलिंग करते हैं उनको हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वरी ऑन द ट्रेडमिल। चिंता ही हम्म करनी है ना, ट्रेडमिल पे करो, जॉगिंग करते हुए करो, तो आपको कुछ फायदा होगा। ओके, हम्म सो थिंकिंग एंड अल्टीमेटली क्या है, पीपल लाइक यू एंड आई, व्हाट आर वी सफरिंग? वी आर सफरिंग आवर ओन थॉट प्रोसेस। हमारे ऊपर की एब्सोल्युटली। थॉट फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन चल रही है और ज्यादातर हम्म प्रोडक्शन हमको तंग कर रही है। यही तो प्रॉब्लम हम्म है। Especially people like you and I, what is the problem that we have? We are not on the roads. We are not feeling like migrant workers right now. Unfortunately, they are going through an actual situation which is really stressful. हमारे जैसे लोग एसी कमरे में बैठ के भी अगर स्ट्रेसफुल महसूस कर रहे हैं बाहर का इतना अनरीजनेबल एनवायरनमेंट के बावजूद, आवर इनएबिलिटी टू हम्म हैंडल अवर थॉट प्रोसेस, इज इट नॉट? जैसे मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि फेसबुक वाले हमसे रोज पूछ रहे हैं व्हाट्स ऑन योर माइंड, व्हाट्स ऑन योर माइंड। आप मुझे बताओ, अगर एवरीथिंग ऑन माई माइंड स्टार्ट्स गेटिंग पोस्टेड ऑन द फेसबुक डायरेक्टली, टेल मी हमारी क्या इज्जत होगी मार्केट में? इसका मतलब क्या है कि हमारे ऊपर के थॉट फैक्ट्री में ऐसी कुछ प्रोडक्शन हो रही है जो डिस्पैच के लायक नहीं है। अग्री। थैंक हमारे क्वालिटी गेट काम कर रहे हैं और ये सारी चीजें डिस्पैच नहीं हो रही। तो डिस्पैच बट नहीं हो रही। सुरेश जी ऐसा क्या है कि हमारी जनरेशन को एक डिप्रेस्ड जनरेशन घोषित कर दिया गया, ऐसा क्यों है? इट्स अ सुरेश वेरी जी ने ना, अनफॉर्चुनेट। तो सुरेश जी ने पहले सोचा व्हाट्स इन योर माइंड वाला फेसबुक का क्वेश्चन सोच के, फिर सुरेश जी ने खुद ही सोचा कि व्हाट्स एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन हिज माइंड, और वो अकेले अकेले हंसने लगे। नो नो अनु, व्हाट आई सी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द करंट जनरेशन। आई गेस एक जो कारण मुझे लगता है कि व्हाई करंट जनरेशन इज अंडर ट्रेमेंडस एंजाइटी एंड डिप्रेशन टुडे, मेरा जो मैं बताने वाला हूँ वो समाधान आज आप उसको लागू नहीं कर सकते, पर मैं कारण बता रहा हूँ। जी। कारण ये है, देखिए पहले जैसे हम हम्म दो तीन भाई बहन हैं, तो मेरे फादर को मैंने कभी इस बात के लिए स्ट्रेस में नहीं देखा कि भाई तुम दो तीन चार हो तो क्या होगा। रादर उनको बड़ी क्लैरिटी थी, इसको इंजीनियर बना देंगे, हम्म इसको एमबीए करा देंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे, और ये अगर कुछ नहीं भी करेगा तो घर पे भी एक आदमी चाहिए। हाँ सो करेक्ट। नन ऑफ द चिल्ड्रन वर अंडर स्ट्रेस। पर आजकल क्या है, ओनली चाइल्ड है या मैक्सिमम दो बच्चे हैं लोगों के, तो उसी हम्म बच्चे को इंजीनियर बनाना है, उसी में से डॉक्टर निकालना है, उसी में से साइड में से ऋतिक रोशन भी चाहिए, उसी में से तेंदुलकर भी निकालना है। तो वो एक बच्चा बेचारा इतना दबा हुआ है, इतनी एक्सपेक्ट, उसके ऊपर पूरे खानदान की एक्सपेक्टेशंस है। हम उसको कहते हैं कि तुझे इस कोचिंग में भी भेजा है, तुझे उस कोचिंग में भी फीस दे रहे हैं। अब आप क्योंकि करेक्ट। उसको चार जगह की कोचिंग में भेज रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो चार जगह स्टार बन जाएगा। So because of these, this burdening by the parents on their children is creating this unnecessary stress. अब मुझे बताओ अनुपमा, आपका मुझे नहीं पता, पर मेरे 10th क्लास की मार्कशीट मेरे बच्चों ने देखी तो वो हैरान हो रहे हैं कि पापा आपको इतनी इज्जत क्यों मिलती है, नंबरों के हिसाब से तो मिलनी नहीं चाहिए। अब मेरे बच्चे 80% से ऊपर नंबर लाते हैं, मैं किस मुंह से इनको नालायक कह रहा हूँ? मेरे और मेरी वाइफ के मिला के नहीं हंसते थे 80। but और Suresh इनको ji, तनाव this भी also, लगता this is something that happens with us कि हम जब बाहर निकलते हैं तो हमको पता चलता है कि जो जो लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो एक्चुअली टॉपर्स नहीं है, एंड टॉपर्स आर स्ट्रगलिंग, एंड जो एवरेज स्टूडेंट्स थे दे आर जस्ट किलिंग इट। है। एंड अनुपमा, you are हाँ in a जी। field where you meet such people who were never toppers in their academics. नेवर एवर। Okay, now you can't say this on their face, but I can say they were never toppers in their academics. They were never thing, but now today they are our role models. एब्सोल्युटली दे आर, या। तो सक्सेस का कोई एकेडमिक्स ही कोई फॉर्मूला है? हु टोल्ड अस दिस? आई थिंक दैट इज आल्सो क्रिएटिंग unnecessary stress nowadays for children. So this anxiety, I would say, is because of this overburdening. Second is because of unreasonable comparisons that we do with people around us. अब एब्सोल्युटली। अनरीजनेबल कंपैरिजन कैसे करते हैं हम?
अब ये ऐसे ही है जैसे मैं किसी की फेसबुक पोस्ट देख के सोच रहा हूँ कि उसकी एक्चुअल लाइफ भी वैसी ही चल रही है। किसी ओके। के आउटकम से अपना बिहाइंड द सीन्स कंपेयर करना, देयर इज दिस पॉपुलर कोट। अब आप किसी के घर की ना एल्बम देख के उसकी एक्चुअल जिंदगी का अंदाजा लगाओगे और फिर अपनी एक्चुअल लाइफ से कंपेयर करोगे तो दुखी रहोगे ना। सही बात है। अब सही हम बात है। देखते हैं लोगों को, कोविड से पहले लोग डालते थे इंजॉइंग हॉलीडे विद फैमिली। अब उसने वो पोस्ट तो डाला बेचारे ने, पर उस फोटो खींचने के बाद जो उसका हाल है, and we are comparing our actual life with people's life मैं that they are projecting on the Facebook. सुरेश जी, आपकी बात इतनी सच है, मैं आपको ऑनेस्टली एक कन्फेशन बताती हूँ यहाँ पे, कि मैंने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को म्यूट कर रखा है, जस्ट बिकॉज वी आर कॉम्पिटिटर्स, एंड मुझे एंजाइटी होता है उनको देख के कि ओ लाइक आई एम व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू एज गुड एज दैट पर्सन। और मैं ऑब्वियसली आई एम फॉलोइंग पीपल जो मुझे इंस्पायर करते हैं, बट ऑनेस्टली उस एंजाइटी से और उस कॉम्पिटिशन से बचने के लिए, जो आप कह रहे हैं कि उस सोशल मीडिया का प्रोजेक्शन से बचने के लिए, आई हैव पुट पीपल ऑन म्यूट। दिस इज लाइक एब्सोल्युटली ट्रू। पर ये बताइए सुरेश जी, आप तो इस जनरेशन के हैं नहीं, पर आपको इतना कैसे समझ आता है कि हम लोगों को क्या चल क्या रहा है हमारे साथ? अनुपमा जी, मेरा बेटा 20 साल का है, हम्म। मेरी बेटी 15 साल की है। जी। तो और जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग, जी। वो हर तरह के लोग हैं हमारे पास। तो few things we understand by observation and by meeting different people every day। और सबसे बड़ी बात है, हम खुद अपने आप को भी तो ऑब्जर्व करते हैं ना, अपने जी। बिहेवियर को भी देखते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, नहीं कि ये हमें कभी स्ट्रेस नहीं करते। हमें तो बहुत होती है। आपको पता, मोटिवेशनल स्पीकर सबसे ज्यादा डिप्रेस होते हैं। ये अच्छा, यही मैं आपसे कहना चाहती थी कि ऐसा लोगों को लगता है कि क्या ऐसा है। ना ना, बिल्कुल है, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत डिप्रेस होते हैं, जैसे आपकी फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही आत्महत्या करते हैं ज्यादातर। मैं बिल्कुल मानती हूँ, एंड एक्चुअली द रीजन इज कंपीटिंग विद अदर पीपल, हाँ कॉन्स्टेंटली देखिए, कंपीटिंग मोटिवेशनल विद स्पीकर का अदर। क्या है ना, यू लिव इन वन एक्सट्रीम। या। Whenever you have a tendency to live in extremes, the problem is after feeling that extreme, if you are not able to maintain that extreme, you will go to another extreme, which is depression। व्हिच इज डिप्रेशन। Okay? तो जितने लोग लाइमलाइट में बहुत रहते हैं ना, उनको डिप्रेशन ज्यादा होता है। अग्री। क्योंकि देखते ही लोग कैमरा निकाल लेते थे, और हाँ। अब वो आते हैं तो देख भी नहीं रहा, तो उनको तो खुद मन करता है कि इससे अच्छा मर जाए। करेक्ट, आई कंप्लीटली लेकिन आती। और हाँ, सूरज तरफ जो है, उनका एक सवाल है सुरेश जी, कि हम खुद को कैसे मोटिवेट करें, खास तौर से अगर हमारी जो फैमिली है वो नेगेटिव हो, तो उस सिचुएशन में खुद को कैसे मोटिवेट करें? देखिए, आप और मैं एक दो चीजें कर सकते हैं। मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट है, जो कि बड़ा टेक्निकल रिक्वेस्ट है, इससे पहले जी। कि आप मेरे बाकी समाधान सुने, अपना विटामिन डी और B12 चेक कराते रहें। जी। जिनके विटामिन डी और B12 में प्रॉब्लम होगी, वो मेरा नहीं किसी का भी प्रोग्राम अटेंड करें, वो मोटिवेट नहीं होते, क्योंकि वो अंदर का केमिकल कंपोनेंट ही ठीक नहीं है, तो उसको आप मोटिवेट नहीं कर सकते। ये टेक्निकल चीज लोग मिस करते हैं। ओके, सो विटामिन डी एंड B12 की डेफिशिएंसी अगर जी। बॉडी में है, इट कैन लीड टू डिप्रेशन एंड डिप्रेसिंग थॉट्स। तो इसको तो एकदम साइड में कर दें सबसे पहले। नंबर दो, जो काम किसी को भी करती है, देखिए आजकल मैं देख रहा हूँ सब लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि मेडिटेट करो टू कम आउट ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस। ट्रस्ट मी, मेडिटेशन इज वेरी पावरफुल टेक्निक, बट नॉट फॉर एवरीवन। लेकिन ये सबको नॉट वेरी। सजेस्ट की जा रही है। हाँ देखिए, दो तरह के लोग मैं देखता हूँ। एक होते हैं जो इंट्रोवर्ट, जो थॉटफुल होते हैं, वो रिफ्लेक्शन में मजा आता है, सोचने में मजा आता है, उनके लिए मेडिटेशन कैन बी वेरी हेल्पफुल। दे शुड इमीडिएटली गो फॉर मेडिटेशन। लेकिन जो मेरी तरह के लोग हैं, जो थोड़े से ना वो ज्यादा हेड में नहीं रहते, तो उनके लिए क्या चाहिए? इफ दे वांट टू कम आउट ऑफ दीज थिंग्स, दे नीड टू इमीडिएटली गेट इनटू सम एक्शन मोड। जैसे आपको अगर लगता है ना, हाँ, अगर आपको लगता है ना कि यार दीज पीपल आर देयर वेयर एज आई एम मोर डिजर्विंग, तो अगर मैं आपको कहूँ अभी कि आजकल आप ऐसा करो अनुपमा जी, आप मेडिटेट करो, तो पता चला मेडिटेशन में वो और डिप्रेस हो जाए, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली डीलिंग विद द सेम थॉट्स अगेन एंड अगेन। व्हाट विल एक्चुअली अ पर्सन हु इज नॉट इंट्रोवर्ट बाय नेचर, सम एक्शन क्या है? मैं कह रहा हूँ, अगर आप अपने बालकनी के गमलों को भी ठीक रखना शुरू कर दो, दैट विल गिव यू सेटिस्फैक्शन। यू स्टार्ट कुकिंग, मतलब एक्शन मोड।
You start Actually. cooking, you start gardening, you start jogging. That will help you. You create some videos Hmm. because you're an action oriented person. You will always get your satisfaction by creating something. So rather than you going Hmm. for the other remedies, you should get into creating something. लेकिन जो thoughtful I हैं, जिनको thoughts के साथ रहना अच्छा लगता है, वो रीडिंग करें, वो hmm. रीड करें, राइट करें, Hmm. अच्छा और कुछ नहीं करें, कलरिंग करें, कलरिंग। Hmm. हाँ, कलरिंग करें, एंजाइटी शांत हो जाती है। अच्छा, अपना जर्नल लिखो, जो चिंता, जिस चीज के बारे में चिंता कर रहे हो ना, उसको लिखो। आपको पता है ना, आपके सोचने की स्पीड ज्यादा है, लिखने की कम होती है। हाँ. तो इससे क्या होता है, व्हेन यू राइट, तो दीज थॉट्स दे स्लो डाउन। तो जिसको जो टेक्निक काम आती है वो उस टेक्निक को इस्तेमाल करे। एक टेक्निक जो मैं सबको सजेस्ट कर सकता हूं, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, Hmm. आप लोग एक आवर ऑफ पावर प्रैक्टिस करो एवरी डे। Hmm. जैसे आप लोग अपने सेल फोन को रोज चार्ज करते हो ना, तो Hmm. इसी तरह आवर ऑफ पावर करो, अपने आप की चार्जिंग करो रोज। Hmm. तो अपने आप की चार्जिंग कैसे करो? 20 minutes every day you must supply some useful information to your thought factory, Hmm. not समाचार। Some हाँ, not podcast. समाचार, जो anything which gives you, which inspires you। अगर Hmm. आप में से टेक्निकल जो मुझे सुन रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी टेक्निकल जानकारी अपग्रेड करें। उनको जरूरी नहीं Hmm. है मोटिवेशनल किताबें पढ़ने की, वो अपनी टेक्निकल जानकारी अपग्रेड करें। Hmm. किसी को मोटिवेशन अच्छा लगता है तो कोई इंस्पायरिंग वीडियो देख लें, कोई अच्छी किताब पढ़ लें, लेकिन 20 मिनट रोज अपनी थॉट फैक्ट्री को राइट रॉ मटेरियल सप्लाई करो। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल ठीक नहीं होगा तो प्रोसेस करके आउटपुट तो खराब ही होगा ना। So 20 Exactly. minutes every day supply some good raw material to your thought factory, and which is absolutely in your control. Hmm. Number one. Number two, 20 minutes every day you must exercise. Choice of your exercise. You can do breathing Hmm. exercise, you jogging, you can do running, any exercise. लेकिन 20 मिनट ना अपने हार्डवेयर को प्लीज जरा थोड़ा सा हिलाया करें। Okay, 20 minutes. 10 minutes every day a person must write. If possible, write in diary and pen, hard diary and pen. 10 minutes every day. You do this and you will get phenomenal result in terms of calming it down. And the last thing is 10 minutes of silence. And I'm only asking you to maintain verbal silence. Let your thoughts go wherever they wish to go. जिसे हम मौन व्रत कहते हैं. हाँ, बस यहां से मौन। क्योंकि जैसे किसी को कहो ना मौन व्रत, तो उनका सवाल आता है विचार तो चलते रहेंगे। मुझे नहीं समझ में आता, चलने दो, वो क्या कह रहे हैं बेचारे। आप कोई वो मतलब ब्रेन डेड थोड़ी हो गए कि आपको विचार नहीं आएंगे। विचारों को चलने दो, जबान को शांत रखो। 60 minutes every day, if anyone does it on a daily basis, you will have sufficient energy available to take charge of your full day. And an additional advice it would be, if possible, do the 30 minutes of the hour of power in the morning. तो जो नाइट बर्ड्स हैं उनको थोड़ा संकट हो सकता है, लेकिन जिनको सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम नहीं है उनको बहुत फायदा होगा अगर ये अर्ली मॉर्निंग आवर्स में आवर ऑफ पावर का 30 मिनट्स कर दें। एंड एक्चुअली दिस वन चेंज कैन चेंज जी. द लाइफ ड्रामेटिकली। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज पेन इट डाउन और इसे ट्राई करके देखिए. जस्ट ट्राई इट फॉर अ वीक और अ मंथ. एक और कॉन्ट्रास्ट चीज मैंने नोट की सुरेश जी. एक्चुअली जब हमें स्ट्रेस और एंजाइटी होती है तो वी स्टॉप मूविंग, वी फील लेजी, हम एक ही जगह पर बैठने लगते हैं. सो दैट मूविंग इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो विटामिन डी और B12 है, ये डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना है या इसका कोई सब्स्टिट्यूट है? यस, नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट ऑन दैट. इमीडिएटली यू नीड टू आस्क योर डॉक्टर, गेट योरसेल्फ चेक्ड, एंड व्हेन दे अलाउ यू, यू शुड टेक इट. मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी है, सिस्टम जो हार्डवेयर में जो सिस्टम है वो इटसेल्फ विल ब्रिंग डिप्रेशन इन योर लाइफ. So it will become सुरेश जी, harder for you to get motivated. मुझे पर्सनल मैसेजेस बहुत ज्यादा आए थे इस बारे में कि स्पेशली लॉकडाउन की वजह से जो फैमिली में नेगेटिविटी, अगर आपकी फैमिली नेगेटिव है, अगर आपकी फैमिली में डिप्रेशन, अगर आपकी फैमिली में कलेश हो रहे हैं, तो वो उस एटमॉस्फेयर में खुद को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं खुद को?
अब लोगों को एक चीज समझ में आ रही है कि जो लोग बड़ा मिस करते थे ना अपनी फैमिली को, अब उनको समझ में आ गया होगा कि फैमिली इतना मिस नहीं करती थी आपको जितना आपको कहती थी। ओके। और देखिए एक और चीज जो मैं भी महसूस करता हूँ, जैसे अब मैं पिछले 60 दिन से, मैं पिछले 15 साल 15 दिन तो घर पे नहीं होता था। मैंने 3 टाइम का खाना एक साथ 10 दिन कभी घर पे खाया नहीं। हम्म। पिछले 60 दिन से मैं 24/7 अपनी फैमिली को टाइम दे रहा हूँ। हम्म। लेकिन अब दे रहा हूं उनको टाइम, जब बेटा 20 साल का हो गया उसको मेरा टाइम चाहिए। अब उसको एक पापा 24/7 उसके छत पे विराजमान है कि हाँ भाई तू क्या कर रहा है, अब तू क्या कर रहा है। वो कह रहा है ले यार अब तेरी जरूरत नहीं है और अब तू यहाँ ऑडिटर बन के घूम रहा है रोज। तो ऑफ जी। कोर्स दी प्रॉब्लम्स विल अकर, ट्रस्ट मी। जी। सो फैमिली में ये जो नेगेटिविटी जो लोग कह रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं दे आर ऑल्सो नॉट ट्रेन्ड इन हाउ टू हैंडल देयर ओन इमोशंस। सो माई सजेशन वुड बी, आप उन्हें ना समझाएं कुछ, गिव देम एक्सपोजर थ्रू सम गुड बुक्स, सम गुड वीडियोस। और एक चीज जो आपको मदद करेगी घर में कलेश शांत करने में या ना बढ़ाने में, प्लीज ऑब्जर्व साइलेंस। बिफोर यू ओपन योर माउथ आस्क योर सेल्फ, एम आई राइट, इज इट वर्थ इट। ये 2 सवाल पूछ के मुंह खोला करें। एम आई राइट, इज इट वर्थ इट। जनरली जब आप गुस्से में होंगे और आप अपने आप से पूछेंगे एम आई राइट, तो आंसर आएगा ऑफ कोर्स यस। पर फिर दूसरा सवाल पूछें कि जो मैं कहने वाला हूं या कहने वाली हूं, इज इट वर्थ इट, विल इट हेल्प द सिचुएशन, विल इट मेक इट बेटर। इफ द आंसर इज नो, शट अप एंड लिसन। और अपने ही फैमिली मेंबर है ना, थोड़ा माफ करना भी सीखो भाई। बट वी एक्चुअली आर सुरेश जी डीलिंग आपने विद, बहुत बहुत एक अच्छा पॉइंट कहा है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी फैमिली को भी नहीं पता कि इमोशंस को कैसे हैंडल करने हैं। दे आल्सो दे यू नो व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर। द पॉइंट इज इवन दे डोंट नो हाउ टू हैंडल थिंग्स। और हम वो जनरेशन है कि हमको एक्सपोजर है कि मतलब ये लाइव सेशन हो रहा है, सब कोई घर बैठ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, दे कैन रीड बुक्स एंड ऑल दैट एंड दे कैन लर्न हाउ टू हैंडल सिचुएशन बेटर। फैमिली वालों के लिए मेरा फॉर्मूला है, पहले भी मैंने बताया है। फैमिली वालों के अपने फैमिली मेंबर्स के कंपैरिजन दूसरों की फैमिली से मत करो। प्रसन्न रहना है, पास है, मेरे लिए खास है। दुखी वही लोग हैं जो कह रहे हैं जो भी मेरे पास है बकवास है। ओके। सो डू नॉट कंपेयर योर फैमिली जो भी मेंबर मेरे विद पास एनीबॉडी है एल्सेस मेरे लिए फैमिली। खास है। मेरे लिए खास है, ओके सर्च मेरी वाइफ मेरे लिए कॉन्स्टेंटली खास है। मेरी वाइफ ऑफ कोर्स। इस पे मेरे बहुत सारे थॉट्स हैं पर वो मैं खुद तक सीमित रखूंगी। एक क्वेश्चन है बहुत देर से, नलिन इज आस्किंग, डू यू थिंक पेरेंट्स आर सेल्फिश व्हेन दे वांट देयर चिल्ड्रन टू फुलफिल देयर डिजायर्स एंड स्टॉप हिम व्हाट ही और शी वांट्स टू डू? I would not say parents are selfish, but जी। parents are ignorant. Parents are ignorant. They think that their children are their property or या investment. या बट ट्रस्ट मी, सब लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं हम सब जानते हैं कि देखिए पेरेंट्स, वी हैव कम थ्रू पेरेंट्स, ओके, बट वी आर नॉट देयर प्रॉपर्टी। हमारी या अपनी भी तो एक जर्नी है जो हमें करनी जी। होगी। ओके। तो एज अ पेरेंट हमारा इतना ही रोल है कि उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी का ध्यान रखें। और हम परमात्मा तो है नहीं कि उनकी लाइफ की हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म। मेरे फादर ने बहुत सी चीजें सिखाने की कोशिश की थी, सारी चीजें तो नहीं सिखा पाए थे। और कुछ ऐसी हम्म। चीजें भी मैंने सीखी वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं सीखूं। एंड आई एम श्योर द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद माय किड्स हम्म। टू। तो अपने आप को ये परमात्मा समझने का जो सुरेश जी ये, आपके साथ ऐसा हुआ आपके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा मोटिवेशनल स्पीकर या लाइफ कोच ये कौन सा प्रोफेशन है? तो कभी ऐसी सिचुएशन है कि आपको अपने शब्दों से उन्हें मोटिवेट करना पड़ा कि यकीन रखो मैं? एक्चुअली देखिए मैं लाइट तरीके से कह रहा हूँ, इसको आप कृपया सीरियसली ना लें। देखिए अगर आपकी इंटेंशंस क्लियर हैं, यू नो, जी। दे मे अंडरस्टैंड इट आफ्टर सम टाइम। हम्म।
तो कई चीजें उन्होंने मेरी अपोज की हैं, बहुत सी चीजें अपोज की हैं। लेकिन फिर जब हम लगे रहे और फिर उसमें से थोड़े दिनों में बाद कुछ रिजल्ट आ जाते हैं, सो देन दे रियलाइज कि नहीं नहीं यार, बच्चा ठीक ही कह रहा था, और अच्छा हुआ इसने उस वक्त हमारी बात नहीं सुनी। लेकिन देखिए, मैं यहाँ बस एक चीज ऐड कर दूं, आज के यंगस्टर्स अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट तो करते हैं, लेकिन करेक्ट। किस चीज पे करते हैं? व्हेन दे गेट इनटू लव अफेयर्स। हाँ। Trust me, parents have no issues if you say that no, I want to become a cricketer, I want to become an engineer, I want to become an astronaut. Parents will go all the way to support you. The only way where they feel stuck at times is कि यार कम से कम शादी मेरी मर्जी से कर लो। उस पर भी जो आजकल changes हो रहे हैं, you know, so they need to be handled differently. Otherwise, parents, I would not say they are selfish. But I They're think concerned. Surendra, this is something you have said very very beautiful. अक्सर हम गुस्से में अपने माँ बाप को भी कहते हैं कि आप स्वार्थी हो, but I think this is something so amazing you said कि they are just ignorant, they are not selfish. उनको जितना पता है बस वो उस नॉलेज से हमसे बात करते हैं। एक और चीज है सुरेश जी, that people have been asking about fear. How do you see fear? हम ये जो अभी जैसे ये पैंडेमिक आया है तो लोग अगर घर में सेफ भी बैठे हैं, so how do you see fear? फियर को कैसे हैंडल करें? As I said earlier, fear भी दो तरह का है, एक रियल है, एक वर्चुअल है। जी। आप और मेरे हाथ में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं। आपका और मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतना है कि हम वो जरूर करें जो हम कर सकते हैं, और जो चीजें हमारे हाथ की नहीं है उसके बारे में वरी करने का कोई फायदा नहीं। भाई अपना हाथ धोएं, हमारे हाथ में है। मास्क यूज करें जब बाहर जाएं, हमारे हाथ में है, राइट। अनजान लोगों के वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो हमारे हाथ में है। लेकिन अब हम मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है, हम कोई वैक्सीन भी इन्वेंट करने में सरकार की मदद नहीं कर रहे, तो कम से कम इतनी मदद करें कि हम इसको स्प्रेड ना करें, और अपनी इन तीन पालन कर लें, और अपने समय का थोड़ा सदुपयोग कर लें। दिस व्हाट वी कैन डू, राइट। तो एब्सोल्युटली। तो सुरेश जी, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी इस पूरी जर्नी में वो एक कौन सा मैसेज है या वो एक कौन सी सीख है जो आपने सीखी और आपको लगा कि यार ये तो बहुत बेसिक है, ये तो सबको पता होना चाहिए, यू नो, दिस इज द बेसिक ऑफ लाइफ। एक बेसिक चीज ऑफ लाइफ विच आई थिंक, व्हाई आई डोंट नो व्हाई पीपल आर मिसिंग, people are wasting their life in order to start living. Even right now, people are assuming that their life is going to resume after the lockdown is over. What they fail to realize, their life is still on. It has never stopped. You are with your family, you are confined to your own places. Come on, but you are still living. That is what surprises me most, Nupama, that people are waiting to start their life while they are actually living. Wow, ये थोड़ा टाइम मुझे भी लगेगा प्रोसेस करने में। दिस इज सो ब्यूटीफुल। और प्लीज सुरेश जी, वो रिक्वेस्ट जो आई थी कि वो जो आपकी फेवरेट लाइन है कि ऑटो वाला बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला लगाते हैं, बट आई थिंक मर्सिडीज वाला नहीं लगाता, वो क्या है? एक बार प्लीज जाते जाते बता दीजिए। ये वो मैंने किसी सेशन में कही थी, जो वो वीडियो वायरल हो गया। व्हाट आई मेंट वाज कि एक चीज जो आपके हाथ में है वो ये है कि आप कैसा सोचते हैं, होगा कैसा वो बहुत सी चीजों पे निर्भर करता है। लेकिन जो चीज आपके हाथ में है वो तो अच्छा सोचो। अब अगर मैं अपना दिन शुरू करते हुए ये सोचूं कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, काम होगा नहीं, अगर मैं सोचता ही ऐसा हूं, तो फिर ऊपर वाले के पास अब जब बार बार ये फ्रीक्वेंसी आती है, तो ऊपर वाले के पास वैसे बहुत सारे काम है, वो जिस फ्रीक्वेंसी के आप थॉट्स भेजते हो कहता तथास्तु, ऐसा ही हो। आपने देखा नहीं, कई लोग जब कोविड से पहले कहीं जा रहे हैं, जाते हुए ही कहते हैं यार मैं जाता रहा हूं पर वहां पार्किंग नहीं मिलेगी, एंड गेस व्हाट, नहीं मिलती, तथास्तु। उसी संदर्भ में मैंने कहा था कि आप मुंबई में हमारे एक अंबानी साहब का बड़ा छोटा सा घर है जो बिना हांडी के टिका हुआ है, उस पर कोई हांडी नहीं लगा रखी उन्होंने नजर से बचने के लिए, उनको नजर नहीं लगती। 8,000 करोड़ के घर में रहते नजर नहीं लगती। आपकी फोटो है सलमान खान साहब के साथ, क्या फिजिक है उनकी, कपड़े खोल खोल के लोगों को दिखा रहे हैं अपनी फिजिक, उनको नजर नहीं लगती। हमारे मध्य प्रदेश पे नजर लग जाती है। ये क्यों लग जाती है? क्योंकि हम ऐसा अपने बारे में सोचते हैं, और ऊपर वाले का तो बड़ा सिंपल है, व्हाट एवर यू थिंक। देखिए वो संस्कृत में कहते हैं यथा भावम तथा भवतु, जिस तरीके के भाव रखते हैं वैसा आपके साथ फिर हो जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य उस वीडियो में ये था, अच्छा सोचे,
अच्छा बोले, जो आपके हाथ की चीज है वो ठीक है। Correct. So, Suraj, it was such a beautiful session. और जिस तरीके से सारे लोग टिक के देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स आए थे, nobody has left the broadcast. That clearly speaks कि सब आपके मुरीद हो चुके हैं. And everybody watching us, आप सुरेश जी को पॉसिबल है इस पेज पे फॉलो कर सकते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे आप जाके उनको फॉलो कर सकते हैं. आप यूट्यूब पे लिखेंगे एंड यू कैन फाइंड हिम. ही इज वेरी वेरी पॉपुलर एंड ही इज वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टैब्लिश दिस इंडस्ट्री इन इंडिया. जब इन सब का ये YouTube नहीं था और हमें पता भी नहीं था कि कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग होती है या लाइफ कोचिंग होती है. He's been there inspiring people. So thank you so much, Suresh ji. You know, people like you enlighten our lives and make our lives much easier. So thank you so much for this session. Thank you, Rupama. Thanks for this invite. Thank you. Wish you all the best. Thank you so much. Thank you, And everyone. everybody watching us right now, thank you so much for all the love, guys. And keep watching. If you want to continue watching us, we'll be live on Instagram, so you can follow us there. And abhi ke liye, namaste, bye, खुश रहें. अभी जिए, बात का वेट ना करें. Okay, bye.